यस, आई थिंक किसी का डाउट था। Yes, sir. यस फ्रैंक। So basically, I'm also from science student taking economics. ओके। So the first semester, honestly, I didn't study properly, but in the end, I grasped a little bit, but I find it kind of difficult. So what will be your advice? Should I continue to this, or it's better to change at the earliest if it's possible? ओके, सो बेसिकली इन विच सब्जेक्ट यू फेस डिफिकल्टी, एमएमई, स्टैट्स और माइक्रो? Stats, little bit stats. ओके Maths ओके, also some. मेनली Yes. स्टैट्स। Okay, so basically now you can continue with this course because not that much of stats are used in the upcoming semester, because only semester one have lots of stats like probability and so on and so forth. But in semester two onwards, all the topics are practical and will taught from the beginning. तो बेसिकली अगर इंटरमीडिएट स्टैट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आप बिगिनिंग से हर एक चीज को सीखोगे, not related to the previous one or not related to the your basic terms. So you can continue with this course. Clear, Frank? All right, sir. All right, sir. तो बेसिकली प्लीज यहाँ पे किसने टिक लगाया इसको रिमूव कर दीजिए। ओके, सो क्या मैं स्टार्ट करूँ जो बेसिकली आज की क्लास का एजेंडा है? बाकी जो भी चीजें है ना आप लोग मीटिंग के लास्ट में पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए। सो जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी जस्ट कि इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंटरमीडिएट स्टैट्स जो है आपके टफनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर सेमेस्टर वन के पॉइंट ऑफ व्यू की तरह ही है। जितना आपने मैंने सेमेस्टर वन में किया है, अगर सीरियसली आपने किया तो शुरुआत से अगर उतना भी मेहनत करते हो तो ये दोनों पेपर हो जाए। अब बात करें अगर इंटरमीडिएट एमएमई की, तो डेफिनेटली इंटरमीडिएट एमएमई आपके सेमेस्टर टू के अंदर में एक चैलेंजिंग पेपर है। और यहाँ पे बेसिकली आपने सेमेस्टर वन में क्या किया था, जो भी आपने एकेडमिक के अंदर में फंक्शन इन वन वेरिएबल पढ़ा था ना, उसी को थोड़ा आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है सेमेस्टर वन के अंदर में, So I have a बेसिक से लेकर। doubt. यस सक्षम। Some two more difficult than sem one. यस डेफिनेटली सेमेस्टर टू इज मोर डिफिकल्ट इन कंपेयर टू सेमेस्टर वन, स्पेशली इन एमएमई। Okay, so in semester two also there's heavy stats, heavy maths. नॉट हैवी स्टैट्स बट हैवी मैथ। And in semester three, सेमेस्टर थ्री ऑल्सो देर इज हैवी मैथ्स, एडवांस एमएमई। there's no more economics. Yes, economics is also there, but economics is also coming with maths. In semester three, there are two papers, micro and macro, and both involve lots of maths. So the name of this course should be changed. No, I think if you manage semester one, you will definitely manage all the semester also. But you have to study from the beginning. Many students क्या करते हैं कि लास्ट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं या बीच में स्टार्ट करते हैं। अगर आप बीच में स्टार्ट करोगे तो फिर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स छोड़ देना चाहिए। अगर आप शुरुआत से पढ़ते हो तो डेफिनेटली यू विल मैनेज। Is there any use of doing economics honors anymore? Yes, Saksham, can you repeat? Is there any use of doing this course? Is there any use? Yes. Definitely. अगर आप in coming future, if you want to go with corporate line, then economics honors is the best course. Lots of students are coming from in corporate line from economics honors. There are many other courses also. Yes, many of the courses also, but the packages and the facilities which provided to the economics honors students are much better in compared to other many courses. But for that, the CGP should also be good, like 9 plus. Yes, Saksham, can you repeat again? But that CGP should also be good. Yes, definitely. सो प्लीज मैं एक बार फिर से अपने पहले तो आज के एजेंडा पे आता हूँ, और बाकी जो आप लोगों को पर्सनली कोर्स करनी चाहिए या फिर और भी अदर कोई क्वायरीज है तो आप लोग प्लीज क्लास के लास्ट में पूछ लीजिएगा। सो मैं आता हूँ एक बार फिर से। ओके, सो बेसिकली मैं इंटरमीडिएट एमएमई की बात कर रहा था कि जैसे कि आपने सेमेस्टर वन के अंदर में एमएमई के इंट्रोडक्टरी लेवल पढ़ा था, फंक्शन इन वन वेरिएबल के क्रॉसपॉन्ड में, आप उसी चीज को सेमेस्टर टू के अंदर में फंक्शन इन मोर देन वन वेरिएबल में पढ़ोगे। सबसे पहले आपका आई थिंक लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर जो कि बस डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे आए। आई डोंट नो कि वो सच में जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी पेड कोचिंग्स के स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट नो। बट आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सच में स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए।
अगर आप स्टूडेंट्स नहीं हो, कहीं के स्टाफ्स हो, तो आई थिंक मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ अभी, तो मैं मीटिंग भी लॉक नहीं कर सकता। सो ठीक है, आई थिंक आपकी वजह से जेन्युइन स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नहीं, चलते। ओके, सो बेसिकली ना इंटरमीडिएट एमएमई के अंदर में इस बार आप लोगों को 3 डिफरेंट यूनिट्स पढ़ने हैं, जिसमें कि पहले, अरे यार 1 सेकेंड गाइस, कि मैं बाद में डेटा निकालता हूँ। चलिए, सो इस बार देखते हैं कौन कर रहा है। एक बार प्लीज आप में से कोई भी जेन्युइन स्टूडेंट हो ना, प्लीज एक बार ध्यान दीजिएगा कि कौन से नाम से ये हो रहा है प्लीज, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बाकी मैं डेटा निकालता हूँ किस तरीके से वो कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, चलिए फिर इंटरमीडिएट एमएमई की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे आपके 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं। और 1 सेकेंड, ओके लांसी, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली ना आपका जो यूनिट नंबर 1 है, पहला यूनिट, वो लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है, जो कि आपने ऑलरेडी सेमेस्टर सॉरी क्लास नंबर 12 में पढ़ा हुआ, क्लास 12 के अंदर में, जहाँ पे आप पढ़ते थे वेक्टर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स वगैरह। तो उसी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिया गया यूनिट नंबर 1 के अंदर में। बट यूनिट नंबर 2 ऑनवर्ड्स, यूनिट नंबर 2 के अंदर, यूनिट नंबर 3 के अंदर में फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल के बारे में आपको पढ़ना है। मतलब अब आपके पास फंक्शन कुछ इस फॉर्म में होगा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा डब्ल्यू, मतलब कई सारे वेरिएबल्स होंगे। अभी तक आप फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात करते थे, एफ ऑफ एक्स के बारे में बात करते थे। अब वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे, और उन सभी के बारे में आपको फिर से शुरुआत, जितना आपने फंक्शन वन वेरिएबल में पढ़ा है अपने एकेडमिक में एज वेल एज सेमेस्टर 1 के अंदर में, उन सभी चीजों को आपको अगेन पढ़ना पड़ेगा फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल में। ये फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल में कैसे डोमेन रेंज वगैरह निकलता है, उस फंक्शन की वेल डिफाइन वो कब कहलाता है, उसके अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कैसे होंगी, चेन रूल कैसे लगेगा, कंपोजिट फंक्शन में कैसे लगेगा, इम्प्लिसिट फंक्शन में कैसे लगेगा, मतलब हर चीज आपको फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल में पढ़ना है। और साथ साथ में तीसरे यूनिट के अंदर में आप फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल को ही कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, वो आप करने वाले हो। तो आपके ना सेमेस्टर 2 के अंदर में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पेपर कोई है, दैट इज वो इंटरमीडिएट एमएमई का पेपर है। इससे ज्यादा चैलेंजिंग कुछ हो ही नहीं सकता। इसी में आपको अच्छे तरीके से मेहनत करना है। आप ऐसा समझ लो कि अगर सेमेस्टर 1 का इंट्रोडक्टरी एमएमई 100% आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये आपको 200% प्रॉब्लम देगा, मतलब उससे दुगना टफ है। ये कह के मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। आपको जैसे मैंने बताया था स्टैट्स एंड मैक्रो, इसमें आपको उतना डरने की जरूरत नहीं है, सेम सेमेस्टर 1 जैसा ही है। बट सेमेस्टर 2 के अंदर में एमएमई, ये एक चैलेंजिंग पेपर है, इसको आपको शुरुआत से समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? एनीवन कोई डाउट? सर अगर नॉर्मल एमएमई में भी प्रॉब्लम थी इंट्रोडक्टरी, तो हम्म। फिर क्या करें? व्हाट शुड वी डू देन? नहीं, आपको वो इंट्रोडक्टरी एमएमई की भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी साथ साथ में। और जैसे लेटर सपोज अगर आप क्लासेस कोचिंग करते हो, मान लेते हैं मेरे से आप, तो मैं जो भी फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल पढ़ाऊंगा ना, सबसे पहले इसको वन वेरिएबल में एक तरीके से रिलेट करूंगा, सो दैट कि आपका वो भी टॉपिक क्लियर हो सके, एज वेल एज जो आप यहाँ पढ़ रहे हो मोर देन वन में, ये भी आपको क्लियर हो सके। क्लियर? सो वी जस्ट नीड द कंसिस्टेंसी, राइट? या डेफिनेटली, अगर आप शुरुआत से कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हो, डेली का आप 1 घंटे भी पढ़ते हो पेपर, तो ये आराम से होगा। और इस ऐसा नहीं कि इस पेपर में भी बच्चे 10 सीजीपीए लेके आते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो किया हुआ, या फिर मैंने जो आप लोगों को डिटेल्स भेजा हुआ है, तो आपको कई सारे कॉलेज के बच्चे दिखेंगे जिनका 10 सीजीपीए आया इसमें भी। तो कहने का मतलब पेपर में अगर 10 सीजीपीए आ रहा है, तो मीन्स कि वो डुएबल है। बट आप कंसिस्टेंसी से पढ़ो, शुरुआत से पढ़ो, डेट्स इट। क्लियर? चलिए, अब ना मैं थोड़ा पेपर में क्या पढ़ना है, कैसे करना है, इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। ये मैं डेफिनेटली हर एक पेपर के पहली वाली क्लास में सिलेबस के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि क्या सिलेबस है, कहाँ से पढ़ना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब मैं ये बताता हूँ आप लोगों को कि अगर आप एसआईजी क्लासेस में एनरोल कराते हो, तो आपको मेरे तरफ से क्या सब मिलेगा। क्लियर है? चलिए, एंड सॉरी वो सारे जेन्युइन स्टूडेंट को, आप सभी को पता है कि बीच में कई सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आ रहे थे, और मैं ये नहीं पता कर पा रहा हूँ कि कहाँ से आ रहे थे या किसी के द्वारा भेजे गए थे। तो उन लोगों की वजह से कोई भी अगर आप लोगों को तकलीफ पहुंची हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि वो आपका टाइम भी खराब कर रहा है, साथ साथ में जो मेरी कंसिस्टेंसी है
जो मेरा कंसंट्रेशन है वो भी खराब करे, बट ठीक है, चल देखते हैं, कुछ टाइम की बात है। चलिए, सो आपको ना बेसिकली सेमेस्टर 2 के अंदर में तीनों ही पेपर के लिए आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस दी जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को ओनली मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। तीनों ही पेपर के लिए आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, जिसके अंदर में, जिस लाइव क्लासेस में बेसिकली आपके पूरे के पूरे सिलेबस जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कराए जाएंगे। कंसेप्ट भी कराए जाएंगे, एज वेल एज उस कंसेप्ट पे बनने वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो सारे के सारे कराए जाएंगे लाइव क्लास के साथ साथ। शशांक, आप थोड़ा वेट कर सकते हो, उसके बाद आप पूछ लेना डाउट, ठीक है? मैं थोड़ा सा बस ये एक बार कंटिन्यू कर लेता हूँ। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको इन सभी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, मतलब रिसेंट लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, सो डैट कि अगर आप किसी भी केस में कोई लाइव क्लास मिस करते हो तो आप उसके रिकॉर्डिंग को देखकर एप्लीकेशन पे आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो अपने सिलेबस को। मान लेते हैं आपने शुरुआत के 4 लाइव क्लासेस को ज्वाइन किया और 5th लाइव क्लास आप किसी वजह से मिस कर जाते हो, तो आपको सारे लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स है वो एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। क्लियर है? अब इसके साथ साथ में ये जो दो पेपर है आपके, इंटरमीडिएट एमएमई एंड इंटरमीडिएट स्टैट्स, इन दोनों ही पेपर के लिए आपको बुकलेट दिए जाएंगे, जो कि ये एक न्यूमेरिकल पेपर्स है, और इसके लिए आपको बुकलेट दिए जाएंगे जिसके अंदर में बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके रीडिंग्स में होंगे, एज वेल एज अलग अलग रीडिंग्स को जब मैं फॉलो करता हूँ, जैसे कि आपका सजेस्टिव रीडिंग होगा हैमंड का, अगर मैं एमएमई की बात करूँ तो, लेकिन क्वेश्चन हैमंड से ही नहीं आएगा पेपर में, वो चियांग के बुक से भी आ सकता है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट जो ऑथर्स के बुक है उसके भी क्वेश्चंस अपने बुकलेट्स में डालता हूँ। साथ साथ में जो पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस है, जो प्रीमियम क्लास के क्वेश्चंस है, वो सारे आपको इसी बुकलेट में मिलेगा। आपको मैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट एमएमई एंड स्टैट्स का बुकलेट आपको शो करता हूँ कि किस तरीके से बुकलेट प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को, तो थोड़ा आइडिया मिल जाए। सो सबसे पहले मैं यूनिट नंबर 1 करता हूँ। आप लोगों को बुकलेट विजिबल है? यस सर। ओके। तो सबसे पहले ना आपके, जैसे मैंने आपको बताया था, इंटरमीडिएट एमएमई के अंदर में पहला यूनिट आपका लीनियर अलजेब्रा का, जिसके अंदर में 3 डिफरेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। एक तो वेक्टर का, मैट्रिसेस का एंड डिटर्मिनेंट्स का। तो मैंने लिखा सपोज टॉपिक वेक्टर। आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बेसिक्स आपके रीडिंग्स के क्वेश्चंस, डिफरेंट रीडिंग्स के क्वेश्चन, वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो टोटल मैंने वेक्टर के ऊपर में कितने क्वेश्चंस ऐड किए नॉर्मल वाले, वो सारे दिख रहा हो आप, आई थिंक यहाँ तक है, यहाँ तक। तो 57 क्वेश्चंस आपको नॉर्मल दिखेंगे। अब जैसे आपने वेक्टर के सारे रीडिंग्स के क्वेश्चंस या दूसरे रीडिंग्स के क्वेश्चंस आपने कर लिए, अब जाके आपको प्रीमियम एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिखेगा। जो सेमेस्टर 1 में मेरे से पढ़े हैं उनको पता है कि मैंने प्रीमियम क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड की हुई थी, जिसके अंदर में सारे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस या एग्जामिनेशन क्वेश्चंस अवेलेबल थे। और उन्हीं क्वेश्चंस के लिए अब यहाँ से आपको बुकलेट के अंदर में ही मिलेगा, दैट इज प्रीमियम एंड पास्ट ईयर, जिसके अंदर में जितने भी पास्ट ईयर पूछे गए 2019 के, 17 के और 16 के, देखो 15, 24, 15, और साथ साथ में जो लास्ट ईयर, मतलब ये अपडेटेड बुकलेट आपको मिलेगा, तो लास्ट ईयर में पूछे गए ये सारे क्वेश्चंस अटैच होंगे उसमें। फिर जाके हम लोग ओपन करेंगे टॉपिक दूसरा, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। फिर इसके क्वेश्चंस होंगे आपको, जैसे 60 क्वेश्चंस बेसिक था, 23 यहाँ पे 83 क्वेश्चंस हो गए वेक्टर के, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के। फिर इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस पहले दिए जाएंगे, रीडिंग से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ये सब आप कर लेते हो। सो आई थिंक ये टोटल 80 क्वेश्चंस गिवन होंगे इसमें। इसके बाद अगेन फिर आपको प्रीमियम क्वेश्चंस दिए जाएंगे। फिर प्रीमियम क्वेश्चंस के अंदर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए पास्ट ईयर्स वगैरह में, वो सब दिया जा रहा है। अच्छा, क्या इन सब के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे? जितने भी प्रीमियम एंड पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है उन सभी के आप लोगों को डिटेल सॉल्यूशंस मिलेंगे। जितने भी नॉर्मल क्वेश्चंस है उनके लगभग क्वेश्चंस आपको क्लास में करा दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, जो क्वेश्चन सपोज मैंने करा दिया, अब उससे मिलता जुलता जो भी टॉपिक के क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, आप उसके डाउट कभी भी पूछ सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको फिर सारे मिलेंगे, मतलब एक तरीके से आप देखा जाए तो यूनिट नंबर 1 के लिए आपको 200 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मिलता है, वो आपके लिए बुकलेट कहलाएगा। सिमिलरली जब मैं यूनिट नंबर 2 की बात करूं, जहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल का, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल में सबसे पहले आप बेसिक चीज सीखोगे कि एक्स वाई प्लेन पे कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसका डोमेन वगैरह निकालते हैं। फिर जाके जैसे बेसिक आपने चीजें सीख लिया है, कुछ पार्शियल डेरिवेटिव सीखोगे। वो करने के बाद इसमें बहुत ज्यादा देखो भर भर के प्रूफ्स है, प्रूफ्स के क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं। तो जितने भी प्रूफ से क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे मैंने क्वेश्चंस इसमें डाले हैं। इसमें आपको जो है ओनली टॉपिक के क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरीके से इस बुकलेट के अंदर में 112 112 क्वेश्चंस आपको ओनली टॉपिक से मिलेंगे ना, नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके रीडिंग्स में अवेलेबल है, अलग अलग रीडिंग्स में अवेलेबल है।
इसके साथ फिर प्रीमियम क्वेश्चन स्टार्ट होगा, प्रीमियम एंड पास्ट ईयर जो पीछे पूछा गया है। जितने भी ये प्रीमियम एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इन सब के आपको डिटेल सॉल्यूशंस दिया जाएगा, आपको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जितने नॉर्मल क्वेश्चंस है उसके लगभग क्वेश्चंस आपको क्लास में कराया जाएगा, साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा। तो 180 के आसपास ये आपको इस पीडीएफ में भी क्वेश्चंस दिखेंगे। तो इस तरीके से बुकलेट दिया जाता है। सिमिलरली स्टैट्स की मैं बात करूं तो स्टैट्स के लिए भी आपको कुछ इस तरीके से बुकलेट दिया जाएगा, जहां पे आपके पास सारे टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, स्टैट्स में ना आपको बुकलेट में प्रीमियम क्वेश्चंस नहीं दिखेगा, बुकलेट में आपको ये दिखेगा, दैट इज मिसलेनियस क्वेश्चन। इसी को कहते हैं प्रीमियम क्वेश्चंस। मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस एंड प्रीमियम क्वेश्चंस आर सेम, जहां पे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस क्या सब आ सकता है वो दिया गया है। लेकिन जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है उसके लिए अलग से आप लोगों को बुकलेट दिया जाएगा। जैसे कि सेमेस्टर 1 के अंदर में आप लोगों को बुकलेट अलग दिया गया था, प्रीमियम वाली पीडीएफ अलग दी हुई थी। सेमेस्टर 2 में इंटरमीडिएट एमएमई के लिए जो बुकलेट दिया गया है उसी में सब अवेलेबल है। लेकिन स्टैट्स के लिए आपको जो बुकलेट दिया जाएगा इसमें नॉर्मल क्वेश्चन एज वेल एज प्रीमियम क्वेश्चन तो अवेलेबल होंगे, लेकिन पास्ट ईयर के लिए अलग से कराया जाएगा। अच्छा, इसमें पास्ट ईयर मैंने क्यों नहीं डाला है, ये इसलिए नहीं डाला क्योंकि स्टैट्स के अंदर में किसी भी एक यूनिट से कोई भी एक क्वेश्चन नहीं होता। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में वो कई सारे यूनिट को एक साथ मिलाकर पूछे जाते हैं, तो इसलिए किसी एक यूनिट में मैं क्वेश्चन डाल दूंगा तो वो आपसे बनेगा भी नहीं। तो पहले हम लोग स्टैट्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रीमियम मतलब थोड़ी पास्ट ईयर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्लियर समझ में आया बुकलेट का कंसेप्ट? एनीवन किसी को डाउट बुकलेट के कोरस्पॉन्ड में? ओके, बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल पेपर है, तो इसके लिए कोई प्रैक्टिकल आपको बुकलेट नहीं मिलता, लेकिन इसके भी पीवाईक्यूज, प्रीमियम, डिटेल सॉल्यूशन सब आपको लोग साथ क्या होगा डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जब मैं नोट्स की बात करूं तो इंटरमीडिएट एमएमई एंड स्टैट्स के लिए जो भी आप क्लास में पढ़ोगे तो क्लास की नोट तो दी जाएंगी जाएंगी, साथ साथ में आप खुद अपने आप के भी नोट्स बना सकते हो क्लास में जो पढ़ के आप जो भी नोट करोगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको स्पेशली हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा हर एक टॉपिक का। लेकिन मैं हर बार हर सेमेस्टर वाले बच्चों से ये कहता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ और जो मैं नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उन दोनों को यूज करके अपना नोट्स खुद बनाओ, सो डैट कि जब आप एग्जाम के टाइम पे याद करोगे ना, जब एग्जाम के टाइम में उस नोट्स को पढ़ोगे तो आप आराम से कम टाइम में अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ये रूल यूज किया है ना पिछले 3-4 साल में, सभी बच्चों को मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इवन थ्योरी पेपर में भी 10 में 10 सीजीपी आया हुआ है। सो अगर आप खुद का नोट्स बनाते हो कंसेप्ट को सीखते हुए और मेरे नोट्स को देखते हुए, तो वो नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। अब बात करें अगर डाउट सेशन की, तो डाउट सेशन हर एक लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। लाइव क्लासेस के बाद डाउट मैं लेता हूँ, साथ साथ में आप अपने डाउट को कभी भी व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। अगर सेमेस्टर 1 में कई सारे बच्चे, अगर आई होप आप लोग ग्रुप में वो बच्चे ज्वाइन है या नहीं, मतलब क्लास में ज्वाइन है या नहीं है, तो आप लोग को आइडिया होगा कि आपने व्हाट्सएप के थ्रू कई सारे डाउट्स आपने पूछे होंगे, तो आप अपने डाउट्स को व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हो। अच्छा, डाउट्स आप अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछोगे तो मैं एआई की तरह काम नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि आपने डाउट पूछा मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। रिप्लाई आएगा, हो सकता है कई बार तुरंत आ जाए, कई बार 2-3 घंटे के बाद आ जाए, लेकिन रिप्लाई आपको आएगा। कोई ऐसा है जिन्होंने सेमेस्टर 1 में डाउट्स पूछे हैं इन क्लास में? यस सर मैंने सर। तो रिप्लाई वगैरह मिलता था आपको? यस सर, टाइम जी। सर। हाँ, तो रिप्लाई आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। चलिए, सो कहने का मतलब डाउट सेशन आपको तीनों ही पेपर्स के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रीमियम एंड पीवाईक्यू क्लासेस, तीनों ही पेपर्स के लिए आपको दिए जाएंगे। जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके सिलेबस को मतलब वैलिड करेगा पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ सॉल्व किया जाएगा। अब बात आता है रीडिंग्स के बैक सॉल्यूशंस के। आप एमएमई एंड स्टैट्स के अपने रीडिंग्स, जैसे मैं एमएमई की बात करूं तो हेमंड आता है, स्टैट्स की बात करूं तो जेएल डिबोर आता है, आप उसके रीडिंग्स के भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि मैंने जो बुकलेट आप लोगों को प्रोवाइड किया है उसमें ऑलरेडी मैं हेमंड एंड जेएल डिबोर के सारे क्वेश्चंस मैंने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए हैं। तो अगर आप एमएमई एंड स्टैट्स के रीडिंग्स फॉलो नहीं भी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और किन शायद कोई ऐसा क्वेश्चन निकल जाए जो मेरे बुकलेट में नहीं है और आपको सॉल्व करना है और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसके भी आप सॉल्यूशंस मेरे से ले सकते हो, मतलब उसके भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, जैसे मैंने सेमेस्टर 1 में माइक्रो के लिए आपको रीडिंग्स के बैक क्वेश्चंस दिए थे, सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको रीडिंग्स के बैक सॉल्यूशंस अवेलेबल किए जाएंगे। और मेरा सजेशन रहेगा कि आप मैक्रो के लिए अपने कॉलेज से रीडिंग्स को परचेज कीजिए, रीडिंग्स को परचेज कीजिए, सो डैट कि आप रीडिंग्स के लैंग्वेज को पढ़ना सीखो, उसके जो क्वेश्चंस गिवन है वो आप करना सीखो, और रीडिंग्स के बैक क्वेश्चंस के जितने भी सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे वो सारे आप लोगों को मिलेंगे।
तो रीडिंग्स के बैक सॉल्यूशंस आप लोग को मिलेंगे। साथ साथ में जितने भी सेमेस्टर 1 के टॉपिक्स हैं जो सेमेस्टर 2 में यूज होने वाले हैं, उन सभी टॉपिक के क्लासेस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ऑल सेमेस्टर 1 के टॉपिक के क्लासेस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को चीजें प्रोवाइड की जाएंगी: लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, बुकलेट, नोट्स, डाउट सेशन, प्रीमियम एंड पीवाईक्यू क्लासेस, रीडिंग्स के बैक सॉल्यूशंस, और सेमेस्टर 1 के जितने भी क्लासेस हैं वो जो भी रिक्वायर्ड है सेमेस्टर 2 के लिए, वो सारे क्लासेस की एक्सेस आपको दी जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट? एनीवन? यहाँ तक किसी कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, कुछ पूछना है? चलिए, आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई थिंक हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है। फ्रैंक, एक्चुअली में मैंने ऑलरेडी जो है फीस को बहुत सोच समझ कर मैंने दिया हुआ है। बाकी आपको मैं फी डिटेल बताता हूँ, एंड जो भी चीजें हैं आप मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं कुछ चीजें आपको और बता रहा हूँ। सबसे पहले फॉर आईए एंड सीए के लिए, जैसा कि मैंने सेमेस्टर 1 में भी आप लोगों के साथ बताया था और सेमेस्टर 2 में भी बोल रहा हूँ मैं आप लोग, एक अच्छा स्कोर करने के लिए, एक अच्छा सीजीपीए लाने के लिए आपका आईए और सीए में मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका 70 नंबर का होता है इंटरनल असेसमेंट और क्लास असेसमेंट, ये इसमें 70 में आप जितना अच्छा स्कोर कर पाओ आपके लिए उतना बेटर है। सो आईए सीए के लिए लेटर सपोज मैं जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा, मतलब हर एक कंसेप्ट को समझाते हुए पढ़ाऊंगा। लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होगा। कॉलेज में क्या होगा कि कई बार अगर मैंने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया है तो मैं यूनिट नंबर 1 ही कराते रहूंगा। आपके कॉलेज में यूनिट नंबर 1 हो भी जाएगा, 2 भी हो जाएगा, और हो सकता है कि कई ऐसे यूनिट का आपके कॉलेज में टेस्ट हो जो कि मैंने नहीं कराया है। ऐसे सिनेरियो होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत आराम आराम से हर एक चीज को बेसिक को लेके पढ़ाऊंगा। बट कॉलेज में काम होता है कि वो आपकी सिलेबस को बस कवर करे। तो लेटेस्ट सपोज मैंने ना अभी आप लोगों को स्टैट्स की मैं बात करता हूँ या एमएमई की बात करता हूँ कि मैं आप लोगों को क्लास में यूनिट नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके कॉलेज में यूनिट नंबर 2 तक हो चुका है और यूनिट नंबर 2 का मान लेते हैं आईए या सीए है। तो इस केस में क्या करोगे? तो इस केस में आपको वो उस यूनिट का रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिल जाएगा पास्ट वाला, क्योंकि मैं अगर 6 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स अवेलेबल है। तो अगर आपके कॉलेज में किसी भी पर्टिकुलर यूनिट्स का इंटरनल असेसमेंट या क्लास असेसमेंट है, कंटिन्यूस असेसमेंट है, और वो टॉपिक मैंने अगर नहीं कराया है लाइव क्लासेस में, तो उस टॉपिक के लिए आपको पास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा। आप मेरे को मैसेज करोगे कि सर मेरे कॉलेज में ये यूनिट का टेस्ट है, तो आपको पर्टिकुलरली यूनिट के लिए पास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दी जाएंगी, सो डैट कि आप कंसेप्ट को अच्छे से पढ़कर अपने आईए एंड सीए में अच्छा स्कोर कर सको। क्लियर है? कोई डाउट? एनीवन? जहां तक कोई डाउट? चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो अब बात करते हैं हम लोग क्लास शेड्यूल के बारे में। तो अगर क्लास शेड्यूल की मैं बात करूँ तो आपकी जो अभी फिलहाल जो क्लासेस होंगी वीक में 4 डेज होंगी, जिसमें कि 2 क्लासेस होंगी एमएमई के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया एमएमई थोड़ा टफ है, इसके टॉपिक भी कई सारे हैं, इसमें टाइम लगेगा। एंड स्टैट्स एंड मैक्रो के लिए एक एक क्लासेस होंगी। तो टोटल 4 क्लास होंगी इन अ वीक। आगे चल के हो सकता है ये 4 क्लासेस जो है 5 में कन्वर्ट हो जाए, बट नॉर्मली अभी हम लोग स्टार्टिंग में वीक में 4 क्लासेस करेंगे। क्लासेस की जो ड्यूरेशन होगी हर एक क्लासेस की वो 1.5 आवर की होगी, 10-15 मिनट ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप हर एक क्लास को 1.5 आवर लेकर चल सकते हो, और वीक में 4 क्लासेस होंगी। और क्लासेस की जो टाइमिंग होगी वो ऑन एन एवरेज आप लोगों की सेमेस्टर 2 की क्लासेस 7:15 PM पे होगी। तो अगर 7:15 से लेकर 8:30 तक की क्लासेस आप लेकर चल सकते हो। और ये वाले, और मतलब ये इसमें हो सकता है टाइम में कभी 7 बजे भी हो जाए, कभी 6:30 भी हो जाए, बट 6:30 से पहले नहीं होगा और 7:15 के बाद नहीं होने वाला। 7:15 के आसपास ही आपकी क्लासेस की टाइमिंग रहेगी। इज देयर एनी डाउट इन क्लास शेड्यूल? चलिए, अगर क्लास शेड्यूल में कोई डाउट नहीं है, कहता सिलेबस कब आपका कंप्लीट होगा। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेस से चले, वीक में 4 क्लासेस करें, तो मैं आपके सिलेबस को आपके एग्जाम के एटलीस्ट 20 से 25 डेज और यू कैन से 1 मंथ पहले आप लोग के एग्जाम से मैं सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा, सो डैट कि लास्ट में आपको प्रॉपर 1 मंथ मिलेगा आपके पूरे सिलेबस को रिवाइज करने का, एज वेल एज पास्ट ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने का। तो आपकी जो सिलेबस है सेमेस्टर 2 की, आपके एग्जाम के मतलब जून में एग्जाम आपके होने वाले हैं, तो उससे 1 महीने पहले और 20 दिन पहले एटलीस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? यस प्रियांशी, जो क्लास की डे है वो मैं जल्द आप लोग के साथ शेड्यूल शेयर करूंगा। नॉर्मली जो आप लोगों का डे होगा वो होगा फ्राइडे, सैटरडे, मंडे एंड ट्यूसडे, ये रहेगी 4 डेज। फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे।
क्लियर? चलिए, सो अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो ये ऑल अबाउट है कि आपको मेरी तरफ से क्या मिलता है अगर आप मेरे साथ बेसिकली क्या कहते हैं इन्वॉल्व कराते हो एसआईजी क्लासेस के अंदर में। और पर्सनली आपके पास कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हो। सर आप एग्जाम में क्लास में डेफिनेटली एग्जाम में क्लास इन द सेंस क्या जो मैं आपका सिलेबस कराऊंगा पास्ट टेस्ट वगैरह कराऊंगा इन्हीं की तो क्लास लूंगा। मेरे पास ऐसा तो नहीं एग्जाम पे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं प्रियांशी, कोई भी क्लासेस ना ही लाइव और ना ही क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग, कोई भी क्लासेस फ्री नहीं रहेंगी। मतलब सेमेस्टर वन जैसा कोई प्रोसेस नहीं रहेगा। सेमेस्टर टू के अंदर में आपको सारी लाइव क्लासेस या रिकॉर्डिंग लेक्चर जितने भी है वो सारे के सारे पेड होंगे। ओनली पेड वाले बच्चों के साथ ही शेयर किए जाएंगे जितने भी मटेरियल्स अवेलेबल है। क्लियर? और हर एक जगह अच्छा कुछ चीजें आप लोग को मैं आपको बता दूं। जैसे सपोज अगर आपने सेमेस्टर वन में माइक्रो पढ़ा था मेरे से इंट्रोडक्टरी माइक्रो, तो मैंने माइक्रो के कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक आप लोग को नहीं कराए थे। तो हो सकता है आपके मन में डाउट है क्या सर इस साल भी आप माइक्रो के भी थ्योरी नहीं कराओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सेमेस्टर टू ऑनवर्ड हर चीज चेंज हो जाता है। सेमेस्टर टू में आप एज अ पेड स्टूडेंट मेरे पास हो तो इसका 100% सिलेबस मैं कराऊंगा। इसमें जो भी अवेलेबल होगा आपके सिलेबस में, जितना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक में कराऊंगा। लाइव क्लास के अंदर में, रिकॉर्डिंग क्लास के अंदर में हर चीज अवेलेबल होगा। क्लियर है यहाँ तक? यथार्थ देखो, फास्ट रिवीजन करके कुछ ऐसा नहीं होता है। आपके पास रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे जिसको आप कर सकते हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं एग्जाम से पहले 10 दिन, मतलब ये क्लास ट्वेल्थ वाला सिनेरियो नहीं है। आपके पास हर एक टॉपिक में कई सारे सिलेबस का टॉपिक होगा, कई सारे अलग अलग रीडिंग्स होंगे। तो उसको आप 15 दिन में कभी भी नहीं, वो रिवीजन आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, आपको वहां से करना है। अगर मैं आप लोग को रिवीजन कराऊंगा टॉपिक का तो फिर आपको जो मैं पास्ट ईयर प्रोवाइड करता हूँ हर एक साल का, उसके बाद जो मैं एग्जाम स्टाइल प्रोवाइड करता हूँ तो वो सब नहीं कर पाऊंगा ना। पहले तो इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट आपको सिखाना, कंसेप्ट का रिवीजन करना है आपको। अब रिवीजन करने के बाद उस कंसेप्ट जितने क्वेश्चंस बनेंगे, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चन जितने होंगे, उन सब क्वेश्चंस को कराना मेरी जिम्मेदारी। वो सारी क्लासेस मैं आप लोग कराऊंगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? कोई डाउट एनीवन यहाँ तक? चलिए, आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि क्या सब अवेलेबल होगा, क्या सब मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा ना फी डिटेल्स के बारे में आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। वैसे मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दिया था, बट स्टिल मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को मन में थोड़ा डाउट होता है। आप जब बेसिकली ना पहले नॉर्मली इंडिविजुअल ही बच्चे ज्वाइन करते थे, ये ग्रुप का अब मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग मेरे को ये ग्रुप ऐड करना पड़ा। ये पिछले 2 साल से ग्रुप वाला कंसेप्ट आया हुआ है। पहले ये ग्रुप वाला कंसेप्ट नहीं था। हर एक बच्चे के लिए सेम फीस होती थी, हर एक बच्चा आता था सेम फीस लेता था। बट मार्केट में कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो गए, कुछ इंस्टीट्यूट ग्रुप डिस्काउंट अवेलेबल कराने लगे या नॉर्मली जो भी चीजें हैं, और बच्चों को भी चाहिए होता है, इसलिए ग्रुप वाले भी एक सिनेरियो मैंने 2 साल से ऐड किया हुआ है। अब इसमें क्या अलग है दिखते हैं हम लोग। आप किसी भी एक पेपर के लिए जब ज्वाइन करते हो तो जो फीस होगी वो होती है 5500। मतलब अगर आप इंडिविजुअली आते हो ज्वाइन करने के लिए किसी भी एक पेपर के लिए तो आपको 5500 फीस देनी होती है। और इसी के अंदर में हर चीज इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा आपको कोई अमाउंट नहीं देना होता है किसी भी पर्टिकुलर एक भी सिंगल चीज के लिए। आपका हर चीज क्लास, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग मटेरियल सब इंक्लूडेड होता है। लेकिन अगर आप इसी एक पेपर को ग्रुप के साथ ज्वाइन करते हो, ग्रुप कहने का मतलब क्या है, ग्रुप की एक कंडीशन होती है कि आपके पास एटलीस्ट 5 मेंबर होने चाहिए। 5 मेंबर मतलब 5 फ्रेंड्स मिलकर अगर आप ज्वाइन करते हो तो उस पर एक ग्रुप कंसिडर किया जाएगा। ऑन दैट टाइम हर एक स्टूडेंट को 500 का डिस्काउंट मिलता है। मतलब आपको वही पेपर 5,000 रुपये में मिलेगा। मतलब 5,000 रुपये पूरे ग्रुप का फीस नहीं है। हर एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअली 5,000 पे करना पड़ेगा इच को। मतलब 5 बच्चे मिलके आएंगे तो 5 में 525 रुपीज पे करना पड़ेगा। मतलब आपको एक्सेस मिलता है सेपरेटली। सभी के मोबाइल में अलग अलग एक्सेस रहेगा, सभी के नंबर पे अलग अलग एक्सेस रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आप अगर आप ज्वाइन हो रहे हो ग्रुप के साथ एक साथ आ रहे हो तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट हर एक बच्चे को मिल रहा है। ये है आपके पास एक सिनेरियो। अगर आप कोई दो पेपर के लिए लेते हो, सपोज आपने इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट एमएमई और स्टैट्स आपने लिया, तो जो फीस होगी अगर आप इंडिविजुअली आते हो तो आपका दोनों पेपर का जो फीस होता है 11,000 होता है। 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलता है, आप 10,000 रुपए में दोनों पेपर ले सकते हो अगर आप इंडिविजुअली ज्वाइन करते हो। अगर यही दो पेपर अगर आप 4-5 दोस्त मिलकर एक साथ आते हो खरीद परचेज करने के लिए तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट हर एक को मिलता है। 9500 में आपको दो पेपर एक्सेस मिलता है हर एक बच्चे को, 9500 ईच। सिमिलरली अगर आप ऑल 3 कोर पेपर के लिए ज्वाइन करते हो
इंडिविजुअली आते हो तो आपको 14K पे करना पड़ेगा, और अगर आप ज्वाइन करते हो ग्रुप के साथ तो आपको 13K पे करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डिस्काउंट एक्स्ट्रा किया हुआ है, क्योंकि जो आपको डिटेल्स मिली होगी पीडीएफ की, तो वहाँ पे इंडिविजुअली फी है 15, बट मैंने इसको 15 को हटाकर 14 मैंने कर दिया, क्योंकि कई सारे बच्चे थे जिन्होंने मैसेज किया हुआ था कि सर ग्रुप नहीं बन रहे हैं, तो ज्यादा ये है वो है। तो मैंने उनके लिए थोड़ा किया हुआ है। तो अगर आप ऑल 3 कोर पेपर के साथ आ रहे हो तो आप 14K मिलेगा आपको ऑल 3 कोर पेपर, और अगर आप ग्रुप के साथ ज्वाइन करते हो तो आपको 13K में ऑल 3 कोर पेपर की एक्सेस दी जाएंगी, जहाँ पे सेमेस्टर 2 के तीनों कोर पेपर की सभी चीजें, सभी मटेरियल्स आपको इसमें मिले। क्लियर है? अब आपके पास कोई भी डाउट हो फी को लेकर या किसी भी और भी चीज को लेकर, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। पायल, ये जो फीस है ये पूरे सेमेस्टर का फी है, कोई मंथली फी है, आपको बस एक ही टाइम पे करना होता है और उस पे पूरा सेमेस्टर आपको कराया जाता है। एनीवन, कोई डाउट हो? यस, हमारे पास एक डाउट है आई थिंक। अच्छा, क्लासेस जो है आपका 4 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, और क्लासेस की जो शेड्यूल वगैरह है वो जल्दी आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। सॉरी शशांक, ईबीए और यू कैन से आई थिंक ईबीएस के लिए मेरे पास अभी फिलहाल आपके लिए कोई टिप नहीं है, क्योंकि ना ही मैं उस पर्टिकुलर पेपर के बारे में फिलहाल, उसके सिलेबस के बारे में भी नहीं जानता हूँ, एंड मैं थोड़ा सा टच में भी नहीं। पास फिट करके जाओ, आई थिंक वो बेनिफिशियल रहेगा। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग फी डिटेल और कोई भी चीज? प्रियांशी, आप 10 क्या बोलना चाह रहे हो? ओके, 10th Jan से। ओके, सो बेसिकली देखते हैं, शुरुआत के 1-2 क्लासेस तो ओपन रहती है सभी के लिए, तो वो नॉर्मली आई थिंक मैं 4th से ही स्टार्ट करूंगा। बट जो कंटिन्यूसली क्लास है आपका शेड्यूल के अकॉर्डिंग, वो डेफिनेटली 1 वीक के बाद ही स्टार्ट होने वाली है। शुरुआत के 2-3 क्लासेस तो ओपन रहेंगी सभी के लिए, तो उसका डेट आप लोगों को ग्रुप पे दिया जाएगा, शेयर किया जाएगा। और जैसे ही ग्रुप बन जाती है पेड वाली, उसके बाद आप लोगों का जो शेड्यूल है क्लास की वो फॉलो की जाती है। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि कॉन्टिन्यूस क्लास आपका जो है वो 10th January से ही स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले हर एक टॉपिक के मैं एक एक क्लास लूंगा, जिसके अंदर में मैं बेसिक क्या है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें होंगी। कोई डाउट एनीवन? चलिए फिलहाल से मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ, कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं।